morning, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest EdTech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I have been here teaching you UGC Net Paper 1. And as your examination is nearby, you need to buckle up, and you need to make sure that your preparation is in line to make sure that you clear your upcoming examination. So in today's video we'll talk about higher education system, that is unit 10, and in particular what we'll talk about is the higher education commissions. So there are so many commissions which are very important and relevant, and important and relevant from your examination perspective, because most of your questions are asked from this particular topic, right? So most of your questions are asked from this particular topic, higher education commission. So we'll read about so many commissions which are very important and relevant for your syllabus. So you need to make sure that you stick till the end so that you know everything about higher education commission. So this is a kind of revision video, so that before your examination, your preparation and your revision for this particular topic is done well for your examination. And if you want to know what exactly questions have been asked on this particular unit in previous years, so what you can do is the best thing that you can do is go to Talent Blazer YouTube channel, and I've already covered unit 10 previous year questions in my live session. So what you can do is go to Talent Blazer YouTube channel, find my live playlist over there. You can go and look for the unit 10 where I have covered previous year questions. So you can expect the questions to be on the same line, and that will actually give you more clarity upon how you have to prepare for your examination, right? So that is basically kind of hack, right? So if you are one of those guys who have not been preparing well, or you're just want to quickly revise your things, so previous year questions are the way, and you don't have to worry about those things. Just you have to watch my video, and you will definitely go through it, and you'll know about what are the important things and how you have to cover, right? So in this video we'll talk about higher education commission, the most important ones, so that their chances of appearing in your examination are like 100%, right? So in any of the set, definitely you can expect a question upon higher education commission. There is no paper without any, there is no paper without zero question asked been on this topic. There is always a question on this particular topic. So that is why this is a very relevant topic and very important one. So make sure that you stick till the end and you're very careful while listening. If you're one of those students who actually make notes, do make sure that you make notes so that your preparation can be enhanced. Okay. So now we'll talk about higher education commission. So first commission, and the most important, one of the most important one, is Radha Krishnan commission, right? So you need to remember the year as well. So in which year this commission came? 1948-49. Okay. This was the first major commission to study the state of the university in India after independence, right? So this is one of the major, we are talking about after independence, right? We got independence in 1947. So this is like one of those important commission that you have to study, right? So this is, we are talking about Radhakrishnan commission, and this was also later also known as University Education Commission. So you have to remember the other name as well. So the other name is University Education Commission. So this is how the examiner can frame questions and trick you basically, where they can ask you the other name of uh, the commission, and you might be not able to figure it out at that point of time in your examination. सो इस कमीशन का पर्पस क्या था, मेन एम क्या था, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. ये कमीशन को अपॉइंट करा गया था विद अ स्पेसिफिक एम टू रिपोर्ट ऑन इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन. सो यूनिवर्सिटी पे फोकस करा गया था एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन दैट मे बी desirable to suit present and future requirements of the country. So this commission was formed so that we could know what has to be done, right? Because after independence we are not at a very good state, right? हमारी country की state इतनी अच्छी नहीं थी. So what we wanted was कि हमें देखने को पता चले कि हमारी एजुकेशन सिस्टम, स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम में कहाँ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ उसको एक्सटेंशन की ज़रूरत है, और वो ना कि सिर्फ उस प्रेजेंट कंडीशंस को फुलफिल करे, हेल्प करे, इम्प्रूव करे, बट फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए भी वो एक्ट करे.
तो इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर by heart is was the recommendation of the commission of university grant commission, जिसका आप एग्जामिनेशन देने जाते हो यूजीसी नेट। ओके, तो इन्होंने ही उसके बारे में बोला था, तो इनको आप बोल सकते हो फादर ऑफ यूजीसी नेट के। इन्होंने एक तरीके से बोला कि आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में आप रिकमेंडेशन करो। और इस ये जो मॉडल हुआ था, ये हुआ था बेस्ड अपॉन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी इन ग्रेट ब्रिटेन। उसके जैसे ही हमें एग्जैक्टली उसके मॉडल के बेस पे हमें भी एक अपना सेटअप करना चाहिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, सो अगर आपको पता है तो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1953 और 1956 में इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। ओके, 1956 में। सो 1953 में एस्टैब्लिश हुई थी, 1956 में स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई थी यूजीसी, राइट। और इनके जो फर्स्ट चेयरमैन जो थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है, ये जो फर्स्ट चेयरमैन थे। आई डोंट थिंक सो कि अभी ये क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल यू शुड बी नोइंग दिस बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी एग्जामिनेशन। मे बी और मे you can expect this, maybe this could come in your examination or maybe not, but still you should be knowing about the examination well which you are giving, right। तो यूजीसी के बारे में रिकमेंडेशन किसने करी थी? राधा कृष्ण कमीशन से। जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देंगे तो उसमें आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज द मेजर रिकमेंडेशन। नहीं, ये नहीं पूछेंगे कि आपको दे रखा होगा यूजीसी ग्रांट कमीशन वाज रिकमेंडेड बाय, एंड उसमें 4-5 ऑप्शन दे देंगे, उसमें आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, राइट। क्या पता उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम ना दे, ये वाला नाम दे दे। तो दैट इज हाउ द एग्जामिनर ट्रिक्स यू, राइट। तो ये है हमारा राधा कृष्ण कमीशन के बारे में 1948-49 मेजर रिकमेंडेशन ऑफ सेटिंग अप ऑफ अ यूजीसी बॉडी। यूजीसी कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1953। 1956 में हमने स्टैट्यूटरी बॉडीज को रिकॉग्नाइज करा ना। और इनके जो फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, इनका टर्म पीरियड अगर किसी को पता होगा, सो चलो मैं बता देता हूँ। दिस द टर्म पीरियड वाज 1953 टू 55। ओके, राइट। अब इसके बाद जो हमारी सेकंड इम्पॉर्टेंट कमीशन जो है उसको मुदलियार कमीशन भी बोलते हैं। इसका जो दूसरा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है इसको मुदलियार कमीशन भी बोलते हैं। सो दिस केम अराउंड इन 1952, राइट। वो हमने जो भी पढ़ी थी राधा कृष्णन कमीशन, दैट वाज इन 1948-49। टाइमलाइन याद करना भी इंपॉर्टेंट है। दिस केम अराउंड इन 1952 एंड दिस वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। वो वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के। तो ये सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में इन्होंने बात करी थी, जैसे इसको सेकेंडरी एजुकेशन भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है? मुदलियार कमीशन। किस ईयर में आई थी? 1952। इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, ठीक है। इनका क्या एम था? टू सजेस्ट मेजर फॉर रीऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट विद रेफरेंस टू एम, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ पे बेसिकली इन्हें सेकेंडरी एजुकेशन को प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन से लिंक करना था। प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद हमारी सेकेंडरी, और देन फाइनली हमारी हायर एजुकेशन आती है। तो बेसिकली दिस कमिटी दिस कमीशन टॉक्ड अबाउट सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इसको एक लिंक बनाने के लिए दिस कमिटी वॉज सेटअप, राइट। तो एक लिंक बनता है दोनों के बीच में। अब इससे रिलेटेड क्या क्या मेजर सजेस्ट करे गए थे वो इसके बारे में यहाँ पे मुदलियार कमीशन में बोला गया था, राइट। तो इसमें आपको ईयर याद करना है, किसके बारे में इन्होंने बात करी थी, उसकी वो चीज़ याद करनी है। वो क्या एक्ट करती है? एज अ लिंक, ठीक है। दोनों के बीच में लिंक एक्ट करती है, ठीक है। तो ये चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। तो ये आपको चेयरमैनशिप से आ सकता है क्वेश्चन, ईयर से आ सकता है क्वेश्चन, क्या इसका दूसरा नाम क्या था, तो वो आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज हाउ द एग्जामिनर कैन फ्रेम क्वेश्चंस, एंड ये आपको पता होगा, देन यू कैन डेफिनेटली, बिकॉज थिंग इज लाइक होता क्या है, एजुकेशनल गेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन में। व्हेन यू एंटर एंड सिट इन एग्जामिनेशन, देर आर चांसेस दैट यू वोंट बी एबल टू सॉल्व 100 और 50 क्वेश्चन। लेट सपोज आपके जो पेपर 1 में आता है 50 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको 50 के 50 एग्जैक्ट क्वेश्चन सही से पता हो कि हाँ यही हमने पढ़ा था, यही आ गया, इसी में से आ गया। देर आर चांसेस कि कुछ पार्ट, कुछ टॉपिक्स आपको सही से रिवाइज ना हो, पेपर में आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। बट वहां पे देन आपको एजुकेटेड गेस करने पड़ते हैं, ठीक है, आपको गेसेस करने पड़ते हैं। और ये गेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन योर एग्जामिनेशन। तो एजुकेटेड गेस करने में अगर आपको टॉपिक का
कंटेक्स्ट पता है, आपको टॉपिक के बारे में पता है चीज़ें, देन यू कैन डेफिनेटली मेक दोज थिंग्स काउंट, राइट। अगर आपको चीज़ें काउंट करनी है तो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर द कंटेक्स्ट, द शॉर्टकट, एंड आप उसमें कीवर्ड्स पे फोकस करोगे तो उससे आपको मे बी उसका डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आता होगा, बट यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन, द रॉन्ग वंस, एंड देन यू कैन रीच टू द राइट आंसर, राइट। So this is how typically you have to choose the right answer and then go about the question as well, right। तो अगर आपको elimination option method भी use करना पड़ सकता है in examination, because at times it is a bit of problem that you won't be able to recognize all the questions कि कैसे solve करना है, क्या करना है, क्या इसका आंसर होगा, याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आपका educated guess काफी काम आता है। ओके, नेक्स्ट we'll talk about this, द ओजी, और जिसको हम बोलते हैं काफी बड़ी कमीशन है, 1964 में आई थी हमारी, जस्ट अ सेकेंड, इसको कोठारी कमीशन, राइट। इसको एक तरीके से हम बोलते हैं बाइबल। अगर इफ यू हैव बीन स्टडिंग फॉर यूजीसी नेट तो आपको पता होगा कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट कमीशन है। इसको डॉक्टर दौलत कोठारी ने रिकमेंड करा था, ये इनको अपॉइंट करा गया था एज अ चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन। तो बहुत ही कम इनका फर्स्ट नेम जानते हैं, राइट। तो ये आई थी 1964 में, और इसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशनर, एक तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर दिया था हमारा नेशन में एजुकेशन पॉलिसीज को, राइट। तो एक तरीके से स्टेप अहेड था, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक था। क्या क्या कोठारी कमीशन को हम बोलते हैं, ये ना ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है यूजीसी नेट का। बिफोर न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिस वाज द मोस्ट हॉट टॉपिक फॉर यूजीसी नेट, राइट। बट अब हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट स्टिल वी हैव टू नो अबाउट दिस कमीशन एज वेल। दिस केम इन 1964, तो पहले आपको ईयर याद हो जाना चाहिए किस साल में आई थी, 1964, राइट। द कमीशन वॉज अपॉइंटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ अ रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 14 जुलाई 1964। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, 14 जुलाई 1964, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। दो देयर आर चांसेस कि आपको डेट के बारे में ना पूछे, बट स्टिल इफ यू यू नो वांट टू रिमेंबर थरली, तो ये 14 जुलाई 1964। इनके जो मेन जो इन्होंने बातें कही थी, इन्होंने बोला था कि हमें प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, रिकमेंडेड प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स। तो आपने देखा होगा कि पहले ये जो था हमारी रिकमेंडेशन डीपीएसपी में थी, बट इसको बाद में फंडामेंटल राइट बना दिया था कि हाँ अब ये हर किसी को प्राइमरी एजुकेशन मिलना ज़रूरी है, तो उसको फ्री कर दिया गया था। गवर्नमेंट स्कूल में यू कैन ऑप्ट फॉर वेरी विद अ वेरी मिनिमल फीस और एट फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो इससे क्या होता कि हमारे उस टाइम पे अगर हम देखें तो इतना लिटरेसी रेट नहीं था, इलिटरेट ज़्यादा थे हमारी कंट्री में। तो एक एज अ स्टेप बूस्टर वी दस कमीशन रिकमेंडेड दैट फ्री एंड कंपल्सरी, and as focus upon the word compulsory education, because everyone in our country, everyone should know the basic things, right। उन्हें बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तो बेसिक चीज़ें एजुकेशन के थ्रू उनको प्रोवाइड करी जानी चाहिए। ए 16 to 14 ईयर्स ये प्रोवाइड करा गया था। लैंग्वेज के बारे में इन्होंने बोला था, कमीशन रिकमेंडेड अडॉप्टिंग अ थ्री लेवल लैंग्वेज फॉर्मूला एट स्टेट लेवल। तो इंग्लिश और एक आपकी जो लोकल लैंग्वेज है ऑफ द स्टेट, और हिंदी के बारे में भी बात करी गई थी कि ये जो है ये ऐसे लैंग्वेज होनी चाहिए। आप एक इंग्लिश लोकल लैंग्वेज के बारे में और एक हिंदी, उसके ये जो सारी लैंग्वेजेस है इनको अडॉप्ट करना चाहिए, 3 लेवल लैंग्वेज एट फॉर्मूला एट स्टेट लेवल। दो इट डेंट वर्क आउट द वे द कमिटी वांटेड, हिंदी हर जगह कंपलसरी नहीं हुई थी, बिकॉज इन मेनी सर्दर्न स्टेट they didn't want Hindi imposition, so that didn't happen eventually, so वो हुआ नहीं। English तो as you know that it has become compulsory, a sort of compulsory that every school has English as a subject, and then local language, if you are in some state in which Hindi is not the local language, so you must have been taught another local language like Punjabi in Punjab, right। तो वो लोकल लैंग्वेज पे भी एम्फोसाइज करा गया था। कोठारी कमीशन ने रिकमेंड और क्या करा कि प्रोवाइडिंग फेवरेबल एंड एडुकेट सर्विस कंडीशन फॉर टीचर्स एंड प्रोवाइडिंग विद द नेसेसरी फ्रीडम टू कंडक्ट एंड पब्लिश दोज फाइंडिंग्स। तो आपको क्या है, एक तो पहली बात कि टीचर्स के ऊपर इफ टीचर्स आर गिवन फ्रीडम
ऑन इफ दे आर कंडक्टिंग अ रिसर्च, तो उनको एक रिसर्च में एक फ्रीडम ज़रूर चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनके लिए रिसर्च। रिसर्च से क्या होगा, वो रिसर्च कंडक्ट करेंगे, उनकी जो फाइंडिंग्स आएंगी दैट शुडंट बी मैनिपुलेटेड, दैट शुडंट बी डॉक्टर्ड। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, द वे it was meant to be, it should be published that way. तो यही जो कोठारी कमीशन है, इन्होंने रिकमेंड करा कि प्रोवाइडिंग फेवरेबल एंड एडुकेट सर्विस कंडीशन फॉर टीचर्स एंड प्रोवाइडिंग देम विद नेसेसरी फ्रीडम टू कंडक्ट एंड पब्लिश दोज फाइंडिंग्स। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने बोला कि प्रमोट कर रहे हैं सोशल जस्टिस। कोठारी कमीशन ने फोकस करा गर्ल्स की एजुकेशन पे, एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, एजुकेशन ऑफ ट्राइबल पीपल, फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन। तो अब आज के टाइम पे इन्हें हम स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन बोलते हैं, पहले हैंडीकैप डिसेबल्ड, बट विद आर गवर्नमेंट दिस न्यूअर वन दे हैव बीन ट्यूनिंग द टर्म्स, उन्होंने चेंज करते रहे हैं थोड़ा टर्म्स को, सो वी डू कॉल देम स्पेशली एबल्ड, राइट। तो अब क्या है, सोशल जस्टिस के बारे में बात करी गई है, that not only one gender gets benefit of education। तो एक जेंडर को, नॉट ओनली वन जेंडर, ठीक है। तो इसमें एक जेंडर को नहीं, बाकी सारे जो हमारे सोशल जस्टिस की अगर बात करें तो गर्ल्स एजुकेशन पे बात करी गई है, बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर बात करी गई, ट्राइबल पीपल के बारे में बात करी। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी। सो देयर आर रिजर्वेशन फॉर देम इन हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उनके लिए वहाँ पे रिजर्वेशंस होती है, that they also get the benefits to study in those university, those reputed university at a very cheap cost, right? So the fees that they usually pay is uh is obviously lower than what a general category student have to pay, right? So ये जो चीज़ें हैं, so to make them equitable so that they can also be at the level of those who are privileged in one way or other, right? और यहाँ पे ना ही सिर्फ हमने एक जेंडर के अलावा, टॉकिंग अबाउट गर्ल्स एजुकेशन, SC ST OBC, right, the backward classes and the education of tribal people, but we also talked about all the specially disabled children as well, right, so that they also get a chance to become or inclusive part of society, right। तो होता क्या था, if they are out of the society, if they are not educated, they're forced to beg, or they're forced to do such things that they don't want to, right? If education is a privilege that should be given to all, right? एक ये right है, सबको मिलना चाहिए, तो उसके बारे में हमने बात करी थी। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम इट, everyone should be actually be benefited out of it, everyone has a right to you know get educated, right? So this is what Kothari commission was meant for, and the major things, the major recommendation that was given by the committee back then was being followed and held up in further coming years। So बहुत जो ज़्यादा चीज़ें थी जो रिकमेंडेशन के बारे में इन्होंने बोला, that was being followed up, right? Because we still talk about equity, promote social justice, and those things have been happening in our country right now. We have been seeing all of those things happening, so that is a great gesture, and we are moving towards more of inclusive education that everyone get a chance, right? So not only the privileged ones, or or the ones who are in upper strata of the society gets all the benefits। so ये जो कोठारी कमीशन की मेजर बात थी। अब इसमें रिजल्ट के बारे में हम बात करें तो द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एट नेशनल एजुकेशन वाज अलाइंड इन 10+2+3 पैटर्न। तो ये जो हमारा 10+2+3 पैटर्न, अगर आपने देखा होगा स्कूलिंग में कि 10th के बाद फिर सेकेंडरी एजुकेशन हो जाती थी, सीनियर सेकेंडरी स्टार्ट हो जाती थी, सेकेंडरी एजुकेशन वाज यूज्ड टू गेट फिनिश बाय 10 सीनियर सेकेंडरी, एंड देन वी टॉक अबाउट हायर एजुकेशन जिसमें हमारी अंडर ग्रेड कोर्सेज होते थे। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम एट नेशनल लेवल वाज अलाइंड इन 10+2+3 पैटर्न। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन वाज द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। सो इन्होंने ये बोला कि हमें एक नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए एजुकेशन पे। तो आपने okay, so we are continuing with what we were teaching and talking about. So bit problem, technical problem at my end. Sorry about that. So we are talking about one of the most important
हमने बात करी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के बारे में इन्होंने बात करी। 2020 में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, बट इससे पहले भी 1982 में भी ऑलरेडी वी हैड 1986 में, सॉरी 1986 में वी ऑलरेडी हैड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। सो दिस वाज अर्लियर, नाउ 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, तो वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट दिस वन, वी नीड टू टॉक अबाउट कोठारी कमीशन एंड दोज विच आर द इम्पोर्टेंट वंस, राइट। तो उसके बाद इन्होंने एक और मेजर रिकमेंडेशन ये दी थी कि हमारे जो एजुकेशन सेक्टर है ना, उसको डिवाइड करना चाहिए 3 पार्ट्स में, नेशनल बॉडी, स्टेट बॉडीज एंड सेंट्रल बोर्ड। तो आपको पता होगा मेजोरिटी ऑफ यू, इफ यू आर इन स्टेइंग इन नॉर्थ इंडिया, तो यू मस्ट हैव स्टडीड फ्रॉम सीबीएसई स्कूल, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्टेट बॉडीज आजकल इतने रेलिवेंट नहीं रह चुके, बिकॉज वी आर मूविंग टू बोर्ड सेंट्रल बोर्ड, हमारा एक सीबीएसई एक आईसीएसई है। और स्टेट बॉडीज में अगर हम बात करें, तो अगर इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर स्टेट लाइक राजस्थान, तो वहाँ पे आपको राजस्थान बोर्ड मिलेगा। इफ़ यू आर फ्रॉम बिहार, तो आपको बिहार बोर्ड के बारे में पता होगा। सो वहाँ पे क्या होता है, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, दे हैव बीन गिविंग द फ्रीडम टू come up with their syllabus the way they want to take their examination, so they have been given an opportunity, so they run their own curriculum, and they have been given the freedom. So these were the major कोठारी कमीशन रिकमेंडेशन, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आज भी ये रिकमेंडेशन फॉलो नहीं होती और ये इतना रेलिवेंट नहीं है, आज भी काफ़ी रेलिवेंट है और ये रहेगा इन फर्दर केसेस में भी, राइट, बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी डज टच अपॉन few points and improvise them, but ऐसा नहीं है that we have discarded this, right now it is also relevant in today's time as well, okay। So now next one that we have to talk about is new education policy, right, और इसको हम national education policy बोलते हैं, तो NEP 2020। So this was came developed by Ministry of Human Resource Development, हमारी MHRD, और इसको जो हेड कर रहे थे इस कमेटी को, दिस वाज हेड बाय डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका काफ़ी मेजर रोल था इन क्रिएटिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इन्हीं की कमेटी थी, इन्होंने ही प्रोविजंस बनाए थे, और इनकी जो स्टार्ट हुई थी दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन जून 2017 एंड दे सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन May 31st 2019। तो इन्होंने जो क्या करा, इन्होंने दे कम अप with important things that in Indian education system, because the Kothari Commission and the National Education Policy back then in 1986 we were following it till 2020, and we need major improvements, major overhaul, right, because various things with time already there have been major changes in, बहुत काफ़ी major changes हो गए, तो उस पर improvement करनी थी। अब इसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें एड्रेस करने के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ क्या क्या एड्रेस करना है। उससे पहले थोड़ा इस पर टच अपॉन कर लेते कि ये 2020 में आई थी, इसको कितना डिले क्यों हो गया। राइट नाउ if your younger sibling is studying in Delhi University or in any other university, or if you have heard about CUT, Central University एजुकेशन टेस्ट, तो आपको CUT टेस्ट के बारे में पता होगा, तो ये भी एक मैंडेटरी सा हो चुका है। मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आर ऑलरेडी टेकिंग पार्टिसिपेट, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, it has been heard that many of the private universities will also be taking part or taking admission through CUT rank, right? So this is a major overhaul. Now your 12th examination CBSE marks will play a part, but still you will get a chance redeeming yourself where you can do well with CUET, right? So if you score well in CUT, you can definitely end up getting in a good college, right? So National Education Policy as submitted by the Kasturi Rangan Committee submitted an education policy that seek to address the challenges that we were faced the existing education system। तो अभी के जो एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स थी, जो चैलेंजेस फेस कर रहे थे, तो उस पर टच अप करा है। सबसे पहली बात है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एज यू नो, इन हमारी जो एजुकेशन है राइट नाउ, विद द लेवल दैट वी आर बीइंग प्रोवाइडेड, द क्वालिटी, इट्स नॉट अप टू द मार्क to the international level, because hardly our universities are in the international rankings, right? एक दो IITs होते हैं। if you are talking about management schools, IIMs are there, but not the majority of universities are not there in the quality wise, so we need to work upon the quality level of the universities. Affordability, as you know, the private sectors has played a major part and major role in education system. So if you are coming from the private college, if you have completed your undergraduation and post graduation from a private college, so you must be knowing how costly it was compared to गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है इन द कॉस्ट।
इक्विटी का मतलब हमने अभी पढ़ा था, टू मेक श्योर दैट एवरीवन के लिए, सबके लिए पॉसिबल हो सके। ऐसा नहीं, इक्विटी सोशल जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली एबल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीवन, राइट? एवरीवन शुड गेट द राइट टू स्टडी, राइट टू एजुकेशन। एक्सेस होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि only the Delhi students can access to the best universities, or the Delhi students can get the access to Delhi University. It should be open for everyone. Everyone can come and go to the top universities of the country, they if they meet the criteria, right? ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ the state oriented people would get the opportunity to get admitted into those universities or those colleges. So accessibility के बारे में बात करी। उसके बाद accountability, as you must be knowing, you know, with establishment of a lot of colleges in our country, uh, you know, the students are not being imparted with the skill education. As you must have been seeing, the unemployment rate is going high in our country, काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो उसका प्रॉब्लम क्या है, दैट the colleges, they are admitting students but they are not providing them the skill set to, when they go out of the college, when they once they are done with the college, they should have those skills in hand, so that once they enter they are able to join the workforce, right? Basically the purpose is to make them employable. So there is accountability factor which has been touched upon, as you must be seeing many of the colleges coming out with the brochure of how many students were selected or got placed from their university. So basically, branding out that we are have good company ties, and not only ties, but we are providing skill set to the students so that they are employable, right? So accountability के बारे में बात करी, quality के बारे में बात करी, affordability के बारे में बात करी। तो ये जो सारे existing education system के जो problems है, उस पर टच अप ऑन करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, अब इसके मेरिट्स क्या है? देखो, सबसे पहली बात है कॉम्प्रिहेंसिव है। अब हमने पहले क्या होता था, न्यू जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी, दे यूजुअली यूज टू टारगेट अ पर्टिकुलर सेक्टर की, हायर एजुकेशन के लिए, एक सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, एक प्राइमरी एजुकेशन के लिए। दिस इज फ्रॉम प्राइमरी टू पीएचडी, सब कंप्लीट है इसमें, राइट? आपके डॉक्टरल तक सब कंप्लीट है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वी आर फोकसिंग अपॉन कॉम्प्रिहेंसिव नेचर, सो दैट स्टूडेंट गेट प्रिपेयर्ड। If a student is joining the school today, a primary school today, so that they have options available till the time, if they want to pursue a PhD there, if they want to pursue a master's, this should be available with so many opportunities. The policy should be such that it should be comprehensive and suitable to the following policies. Let's suppose there is one particular policy for primary school, then there is another policy for secondary education, so they all should be suitable to each other, right? So वो comprehensive के बारे में हम बात करें, सब एक साथ मिल के बननी चाहिए, ऐसा नहीं एक दूसरे से compete कर रहे हैं। ओके, उसके बाद वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। जैसे हमारा जो कोठारी कमीशन में था, दैट वाज 10+2+3। नाउ वी हैव अ मॉडल ऑफ 5+3+3+4। ये हमारा नया मॉडल है। आई हैव टू इरेज इट बिकॉज देयर इज अनदर स्लाइड एज वेल। तो यहाँ पे हमने बात करी है कि जिसमें एजुकेशन जो है स्टार्ट हो जाती है 3 years में, और in 3 to 8 years में we can shape the children futures, if you, because this has been research conducted, if students are being exposed to multiple languages in early years, they are able to learn them easily compared to those who get aware about those in their later stage or later part of their life, right? तो वो एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में हम फोकस कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं। ईजी ऑन रेगुलेशन, ईजी ऑन रेगुलेशन का क्या मतलब है? इफ़ यू हैव बीन क्लोज टू योर टीचर्स, इफ़ यू नो, हमारे कॉलेजेस में काफ़ी इंस्पेक्शंस होती हैं, तो इंस्पेक्शंस विच आर ऑन द रेगुलर बेसिस, यू नो, दे आर वेरी हेक्टिक एंड ट्रबलसम। तो ईजी ऑन रेगुलेशंस का क्या मतलब है कि द कॉलेजेस शुड डू सेल्फ असेसमेंट, द यूनिवर्सिटी शुड डू सेल्फ असेसमेंट, एंड they should do voluntary declaration about how much they are doing and how they are doing and the progress that they have been making, इंस्टेड ऑफ द कंपल्सरी जो आपके यहाँ पे बार बार आपके पीरियोडिक इन्वेस्टिगेशन होती है, उसको कट डाउन करना चाहते हैं। उस पर जो कॉस्ट लगती है, उसको इन्वेस्टिगेशन को हम कट डाउन करना चाहते हैं। ओके, प्रमोट इंक्लूजन, इस चीज़ के बारे में अभी ऑलरेडी कितनी बार बात कर चुके हैं, बट हमारा ये मतलब है
कि जो सोशली और डिसएडवांटेज पे हैं इन आर सोसाइटी, दैट इज ट्रू दैट देयर आर मेनी people, many students that they are not at such levels that they can afford education, right? तो वहाँ पे socially and educationally disadvantaged children को pursue करने में education कोई problem ना है, तो इनके लिए हमने we have scholarships available, scholarships इनके लिए available करा रखी है, so that they do not get out of the system, right? तो वो inclusive हो जाए, वो हमारे system में हमारे साथ ही रहे। तो एक education एक ऐसी चीज़ है जो कोऑपरेटिव बनाती है, ऐसा नहीं है कि किसी को एक्सक्लूड करना सिखाती है, कोऑपरेशन के बारे में सिखाती है। तो ये हमारे सारे क्या है, मेरिट्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो हमने लास्ट स्लाइड में कवर करा था, ये जो चैलेंजेस दैट हैज बीन फेस दैट आर बीइंग फेस बाय द एजुकेशन सिस्टम, इसको टैकल करा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने। तो इसको आपको पढ़ना है, याद करना है कि क्या क्या है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं। ओके, मेरिट्स हमने अभी कवर कर लिए। नाउ विल टॉक अबाउट लिस्ट ऑफ रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज इन इंडिया फॉर हायर एजुकेशन। तो यूजीसी के बारे में आपने पढ़ लिया, ईयर पढ़ लिया, 53 56 में बॉडी बनी, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर हमारे फर्स्ट यूजीसी चेयरमैन थी। अब इसमें अभी जो करंट यूजीसी चेयरमैन है वो प्रोफेसर डीपी सिंह है। तो आई होप ये याद हो, सबको पता ही हो इसके बारे में। और अगर हम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बात करें, सो दिस बॉडी वाज फॉर्म 1945 या 46 में फॉर्म हुई थी। ऐसे ही बहुत सारी जो आपकी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, फॉर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इन सब के आपको एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स याद करने इंपॉर्टेंट है, राइट? एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स, और इसमें तो फुल फॉर्म गिवन है, तो कभी कभार आपको फुल फॉर्म भी, शॉर्ट फॉर्म में एक्रोनिम में पूछा जाता है क्वेश्चन, और आपको आंसर करना होता है फुल फॉर्म क्या है। तो ये सारा का सारा आपको नोट डाउन करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप वीडियो देख रहे हो, और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो उसे नोट डाउन कर लो, पॉज कर लो वीडियो को यहाँ पे, और इसको नोट कर लो विद देयर ईयर्स, जिससे आपको याद हो जाए कि कौन से ईयर में थे, इनकी क्या फुल फॉर्म्स है। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, और जो मैंने आपको ऊपर बताए इंपॉर्टेंट कमीशन से आपको क्वेश्चन बन सकता है। जस्ट अ सेकंड, right? So we have come towards the end of the session. So we'll talk about what the important things that we have covered. Firstly, we have talked about UGC की बॉडी के बारे में हमने बात करी, हायर एजुकेशन कमीशंस के बारे में हमने बात करी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। we have talked about the important ones, ऐसा नहीं है कि we haven't touched upon them. The most important thing is जो हमने कवर अप करी, recommendations of higher education commission। मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप समझ जाना, हायर एजुकेशन कमीशन। ओके, इसमें कोठारी कमीशन जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है वो, और उसके बाद हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पढ़ा। इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, उसके बारे में हमने पढ़ा, क्यों आई, क्यों बनी, क्या रीज़न हुआ इसको डिले। देखो, इसका डिले रीज़न सबसे जो मेजर था वो कोविड था, नहीं तो ये पहले ही इम्प्लीमेंट हो जाती। अब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, इम्प्लीमेंट की वजह से आपके पास, आप देख रहे हो, काफ़ी चेंजेस आने लगे, right? So if I'm currently teaching in Delhi University, so I have come across that there are so many different stream of students which are also able to participate or learn about the subjects which are not in their main curriculum। जैसे एग्जाम्पल के लिए many of the BA students अगर हम बात करें, तो वो जो है they are able to pursue financial literacy of subjects like which are enriched in finance, जो उनके मेन करिकुलम में नहीं होता। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब अब स्टार्ट हो गया। ओके, तो ये हमारा क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ हायर एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से ये सब स्टार्ट हो गया। डिले हो गया, 2020-21 से इम्प्लीमेंट होना था, 22 टूवर्ड्स एंड में इम्प्लीमेंट हुआ है। अभी आपको पता होगा CUET ने अभी डेट्स भी लॉन्च कर दी फॉर देयर एग्जामिनेशन विच विल हैपन सून आफ्टर योर CBSE बोर्ड। तो इसमें और इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि आपको पता है कि आपके CBSE बोर्ड्स की अब उतनी रेलेवेंसी नहीं रहेगी जैसे पहले होती थी। तो CUET काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, जिससे बच्चों के लिए थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। इफ़ दे आर नॉट एबल टू स्कोर वेल इन बोर्ड्स because of anything, they have still a chance to land up into their best universities with doing performing well in CUET। ओके, तो वो चीज़ अब पॉसिबल हो चुकी है। और हमने पढ़ा कि इम्पोर्टेंट बॉडीज़ कौन कौन सी, इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ जिनकी फुल फॉर्म और आपको एस्टैब्लिशमेंट डेट याद करनी है। ठीक है, तो ये हमारा सेशन की समरी थी।
अगर आपको पूरी डिटेल में ये पढ़ना है, हायर एजुकेशन यूनिट को कवर करना है, सो व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली क्लेम ई बुक विच इज फॉर फ्री। कहाँ पे? इस नंबर पे व्हाट्सएप टेक्स्ट करना है 9873907600 पे, एंड देन यू कैन क्लेम योर फ्री ई बुक। उसमें आपका हायर एजुकेशन यूनिट 10 पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और उस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ दिस यूनिट। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी रह गया, कहाँ से करूँ? कहीं भी नहीं जाना, बस यहीं पे है, सबका सब मिल जाएगा। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ये चीज़ यहाँ से ज़रूर करके करके कंप्लीट कर लेना। Okay, as you know, your examination is nearby, right? So if you are, joining me for the very first time, if you are here for the first time, thank you for joining. If you like the video, please do hit the like button, subscribe to the channel, and share this video to your friends and the content. As you know, your examination is nearby. 18 फेब से है, if I am not wrong, 18 फेब से मार्च के बीच में आपका स्टार्ट हो जाएंगे एग्जामिनेशन। एंड एट दिस टाइम व्हाट यू हैव टू डू इज मेक श्योर दैट यू गिव मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट के लिए अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे, तो टैलेंट बेजर ऐप is the right thing that you have to do is basically download the talent wizard app from the Google Play Store. The link for the same will be mentioned in the description below. मॉक टेस्ट में आपको एक क्या बोलते हैं, डायरेक्शन मिल जाती है कि मेरी प्रिपरेशन कैसे जा रही है। तो मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी डायरेक्शन देख सकते हो, हमारी प्रिपरेशन की डायरेक्शन देख सकते हो। वो आप यहाँ पे इस ऐप के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कैसी जा रही है उसको देख सकते हैं कि हाँ सही है या नहीं है, तो वो चीज़ पॉसिबल है। तो ये चीज़ आपको करनी है, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे यहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो एवरीथिंग हैज़ बीन प्रोवाइडेड हेयर, so you don't have to worry, and this is also available for free, so you can easily try it out, right? No harm in trying it. Okay, so thank you all for joining. Make sure that you hit the like button, subscribe button, and hit the bell icon as well, so whenever I come with the video next, you get notified for the same. So thank you all.